সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়কে সামনে রেখে আমরা জোট করেছি। কাজে আমাদের এই যে জোট, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। তাদের কোনো শ্রদ্ধা দেশাত্মবোধ নেই। তারা ওই চীনের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হয় তারা চীনের সঙ্গে দাঁড়ায়, আর ভারতবর্ষের মধ্যে সবসময় সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে। তারা ভারতবর্ষের মধ্যে যেমন সাম্প্রদায়িক সুর দিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করে, তাদের যে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি, যে ইশতেহার, সেখানেও আমরা লক্ষ্য করছি না যে আমাদের বেকারদের জন্য সেখানে কি প্রস্তাব রাখা আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই বামফ্রন্ট সরকারের এবং এই সিপিএম এর যে ইশতেহার, সেখানে সপ্তম বেতন কমিশনের কোন উল্লেখ নেই বন্ধুগণ। কাজেই এই সিপিএম সরকার এবং বামপন্থী যারা নেতৃত্ব, তারা একটাই প্রচার করবে যে এই যুদ্ধটা অসহযোগ। কাজে তারা তার জন্যই প্রথম থেকে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে আমাদের গন্ডাছড়া একটা ঘটনা তারা ঘটিয়েছিল। আমরা দেখেছিলাম সেই দিন যে 8 ফেব্রুয়ারি 2017 ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব বিল, এই বিলের বিরোধিতা করে একটা রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তারা একটা ভবন রেখেছিল এডিসি এলাকায়। विकास चकमा जी को मैं राष्ट्रीय अभिनंदन ज्ञापन करता हूं, जो युवा मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव और कैंडिडेट धनंजय त्रिपुरा जी, जिला और पंचायत और मंडल स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं राष्ट्रीय अभिनंदन। लोग इसको अपने तौर पे अच्छे से अपने दिल से लगा के सुनिएगा। ये त्रिपुरा हमारा स्लोगन है कि एक त्रिपुरा और श्रेष्ठ त्रिपुरा, और ये एक त्रिपुरा आप लोग जो हजार यहाँ पे आदमी आते हैं, इनको कहते हैं कि हम लोग ने असम से लाया है, यूपी से लाया है। रामचक ni mortam ngai hen অবনন রমিখানে আনি কত কম দংনাই রাজনৈতিক নি ক্ষেত্রে শুনো রাজনৈতিক পাতাল বানি সুকা আপনাদের সকলকে এবং ভারত মাতার জনকে ওনাকে সম্বোধন জানার জন্য ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, अमित शाह जी की अमित शाह जी तुम्हारे जनाई स्वागतम, বন্দে মাতরম, अमित शाह जी तुम्हारे जनाई स्वागतम, বন্দে মাতরম, अमित शाह जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, अमित शाह जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, अमित शाह जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। भारत माता की পাল্টাই চলো, পাল্টাই বন্দে বন্দে বন্দে। এবারে আমাদের অতিথিবৃন্দদের আমরা রিক্সা দিয়ে বরণ করব। আমি আমাদের যুব মোর্চার বোনদের অনুরোধ করব রিক্সা এবং রিক্সা প্রদান করবেন। রিক্সা প্রদান করার জন্য আমাদের মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের নেতৃত্ব এবং আমাদের আইপিএফটির সহ সাধারণ সম্পাদক, আমি ওনাদের অনুরোধ করব রিক্সা দিয়ে আমাদের অতিথিদের বরণ করার জন্য। সবাই হাততালি দিয়ে আমাদের অতিথিদের আপনারা বরণ করুন। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী অমিত শাহজি, তারপরে আমাদের ইলেকশনের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত আমাদের নেদার চেয়ারম্যান আমাদের হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, ওনাদের রিক্সা দিয়ে বরণ করা হচ্ছে। আমি আবার অনুরোধ করব করজোরে হাততালি দিয়ে সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্য।
হামবাই চিনি নগরে রন রিসার হয় ইয়ে খেমানি বাগাই লামসকমানি বাগাই এখন অনুরোধ করব আমাদের ৪৪ নং রায়মা বিলির বিজেপি এবং আইপিএফটি মনোনীত প্রার্থী শ্রী ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে ওনার ভাষণ রাখার জন্য। যতনা খুলুমকা বেকুনি জুজু এই করে সবাইকে নমস্কার। আজকে গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ময়দানে আইপিএফটি এবং বিজেপি বিজয় সংকল্প সমাবেশ ও সমাবেশ তাই মঞ্চে পেয়েছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি হনারেবল অমিত শাহজি, তিনি মঞ্চ প্রায় সবাই যাও আসামে অর্থমন্ত্রী নেতানি চেয়ারম্যান অনারেবল স্যার হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, মঞ্চে উপস্থিত আইপিএফটি এবং বিজেপি নেতৃবৃন্দ, এবং আজকে এই বিজয় সংকল্প সমাবেশে দূর দূরান্ত থেকে আগত মায়েরা বোনেরা এবং সকল অংশের আমাদের জনপ্রিয় ভাই বোনকে আন্তরিক এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে দু চারটি কথা বলবো। আজকে এই বিজয় সমাবেশ আমাদের এই ৪৪ রায়মা ভ্যালিতে ঐতিহাসিক সমাবেশ, যে আগামী 18 তারিখ যে আমাদের এই ৪৪ রায়মা ভ্যালি দীর্ঘ বছর এবং 25 বছর বাম শাসনে যে আমাদের সকল অংশের জাতি এবং জনজাতির মধ্যে লাঞ্ছিত বঞ্চিত এবং শোষিত, সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের সেই 18 তারিখ সুবর্ণ সুযোগ। তারপরে যেভাবে চিনে কমিউনিস্ট শাসন যে ৪৪ রায়মা ভ্যালিও যেভাবে চিন শোষণ খাইকা এবং সেই শোষণে মুক্তি মানব বলে তিনি আরো দূর দূরান্তকে নিয়ে হাকসাল সাম্পা ফাইনাই যত আনি বাফা তাকু করো নাও তিনি এই তিনি ঐতিহাসিক জমের এবং তিনি আগামী 18 তারিখ এই 18 তারিখ ৪৪ রায়মা ভ্যালিও আইপিএফ এবং বিজেপি নিয়ে সরকার গঠন খায়। এই সরকার নতুন সরকার ঐতিহাসিক জয় এবং তিনি আনি জয়া এবং যতনি জয় এই জয় তিনি সকল অংশের তিনি আনি হাকসাল সাম্পা ফাইনাই আনি মাফা তাকু করো না বিভ্রান্ত তাহলে যেভাবে ছিল উন্নয়ন কক্ষ হয় যেভাবে ছিল এই গন্ডাছড়া ৪৪ রায়মা ভ্যালিও তিনি সরস্যবাড়ি থেকে গঙ্গানগর থেকে তিনি সকল অংশে রাস্তা পানি জল স্বাস্থ্য তিনি উন্নয়ন হইয়া আগামী দিনও এই ৪৪ রায়মা ভ্যালিও আমার বাগায়
পরিবর্তন দরকার এবং পরিবর্তন নয় সেই পরিবর্তন ওনার বাগে সকল তিনি এই 44 সামনে পেলে 43,000 ভোটার জান তিনি পবিত্র ভোট আগামী দিন সেই তিনি আইপিএফ এবং বিজেপি চিহ্ন সেই দা চিহ্ন ভোট হয়ে যেন আনা বিপুল ভোট দেখায় আগামী দিন जों कोनो ए गन्ना महकुमा याखै जों कोनो ए स्वास्थ्य परिसेबानि बागै जों आगरतला थांनांगला जे दिनै शिक्षानि बागै जों आगामी दिनाव से आगरतला थांनांगला समस्त दिनै आगामी दिनाव से आं नोंनि बेसा एबं नोंनि खुरिनि बेसा आगामी दिनाव नाव যদি আনা সুযোগ রাখায় সেই দিন যেভাবে 10 বছর বিধায়ক যে ললিত বাবু এক কিছু কাম খায়া এবং কোনো কাম খায়া তিনি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি লয় তিনি জনগণ বোকা বানিয়ে এবং বেকার তিনি শোষণ খায় কর্মচারী শোষণ খায় এবং তিনি ইলেকশনে তিনি কোটি টাকা এবং লাখ লাখ তিনি আদায় খাই তিনি কর্মচারীরা তিনি শোষণ খাইবেন পরে আগামী দিনে সেই জবাব এই সকল অংশের তিনি জাতি এবং জনজাতি যে তিনি হয় নাই এবং এই সমাবেশে হয় নাই যত তিনি আগামী দিনে সেই তিনি আগামী দিনে সেই নতুন সরকার নতুন পরিবেশ এবং নতুন ইতিহাস হবে সেই 44 সালের বেলিতে তারপর অসিল আং কক লাগলা তিনি খুবই ভাগ্যবান তিনি সারা 12 বছরে সেই সভাপতি তিনি 44 সালের বেলিও जों हायातो पाराव তিনি চিকনসা এলাকাও তিনি ফাইমান বই जों বেলাবেলকে হামবাইও অসন সাইনো আনি কংনো অরমতাসরাই যতন খুলুমকা হামবাই আইপিএফতে বিজেপি জিন্দাবাদ এখন আমাদের আজকের এই ঐতিহাসিক জনসভার প্রধান অতিথি তথা ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বময় কর্তা শ্রদ্ধেয় অমিত শাহজি মহোদয়কে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবেন 44 রাইমা ভ্যালির ভারতীয় জনতা পার্টির আইপিএফটি এবং বিজেপির মনোনীত প্রার্থী এবং 42 বীরগঞ্জ ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রদ্ধেয় রঞ্জিত দাস এবং আসামের অর্থমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি মহোদয়কে অনুরোধ করছি আমাদের সভাপতিকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য সবাইকে বলছি আপনারা আমার সঙ্গে বলবেন বলো বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম চলো পাল্টাই চলো পাল্টাই চলো পাল্টাই এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ভারতীয় জনতা পার্টি তথা আসামের অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী আজকের আমাদের এই জনসভার বিশেষ অতিথি ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। आप लोग सब लोग एकदम ठंडा बैठा हुआ है तो सामने आ जाइए सब आइए और एक साथ मेरा साथ बोलिए भारत माता के भारत माता के हम लोग को पूरा चिल्लाना चाहिए तभी तो मानिक सरकार का कान में आएगा ना तो पूरा जोर से मेरा साथ बोलिए भारत माता के भारत माता के। आज हमारा बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सभापति हमारा सबका आदर्श पुरुष श्री अमित शाह जी, हमारा अमरपुर केंद्र का उम्मीदवार रंजीत दास जी, ये राइमा वैली का हमारा उम्मीदवार धनंजय त्रिपुरा जी, भारतीय जनता पार्टी का राइमा वैली मंडल का अध्यक्ष विकास सकमा जी, आईपीएफटी का सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी शुक्लाश्वर नावटिया जी, मंच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी का नेतागण, माताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोग को शुक्रगुजार करता हूं कि
आप लोग सब आके ये रायमा वैली में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने एक ऐतिहासिक जनसभा अनुष्ठित किया है और आप लोगों को देख के ये जरूर मैं बताना चाहता हूँ कि रायमा वैली में धनंजय त्रिपुरा जीतेगा जीतेगा जीतेगा, उसमें अभी और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आज आप देखिए, आज पूरा त्रिपुरा में एक परिवर्तन का लहर है। आज आप त्रिपुरा में जाइए, रास्ता में कोई बच्चा को पूछिए बेटा तुम्हारा नाम क्या है, वो अपना नाम नहीं बोलता है, क्या बोलता है, सला पलटाओ। किसी को मैं पूछता हूँ कि माताजी खाना हो गया, बोले सला पलटाओ। माताजी कोई ऑफिस में गया था, सला पलटाओ। आज सारा त्रिपुरा में एक ही शब्द सुनाई देता है, सला पलटाओ सला पलटाओ सला पलटाओ। किस लिए ये सब सुनाई देता है, किस लिए? आज त्रिपुरा का जन जन परिवर्तन चाहते हैं। त्रिपुरा का 35 लाख नागरिक अपना दिल से चाहते हैं कि सीपीएम का शासन समाप्त हो। सीपीएम ने आज त्रिपुरा को अपशासन का दिया, अन्याय किया, संत्रासित किया और पूरा हमारा त्रिपुरा का लोगों का साथ आज 25 साल उन्होंने अन्याय किया। आप लोग को मालूम होगा, जब त्रिपुरा में पहले मानिक सरकार का सरकार आया था, उस समय त्रिपुरा में बेकार का संख्या सिर्फ 25,000 था। तो 25 साल में 1,000 भी बेकार अगर कमती होता था, आज त्रिपुरा में एक भी बेकार नहीं होता था। लेकिन आज आप लोग को मालूम होगा, आज त्रिपुरा में कितना बेकार है। 25,000 से बढ़ के 7.5 लाख त्रिपुरा में बेकार लोगों का जन्म हुआ। आज त्रिपुरा में कोई युवा युवती का साथ कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ भी त्रिपुरा का युवा युवती का पास नहीं है। आज आप लोग रेगा का काम करता है, आज हमारा लोग मजदूरी करता है। आज दिल्ली से ये मजदूरी के लिए 340 रुपया भेजा जाता है। आप लोग को कितना मिलता है? 170 रुपया मिलता है। ये बाकी 170 रुपया कौन खा जाता है? सीपीएम का दलाल लोग ये 170 रुपया खा जाता है। आज त्रिपुरा का ऐसा हालत है, पूरा त्रिपुरा में आप जाओ, सिर्फ 22 कॉलेज आपको मिलेगा। धनपुर में मैं गया था, एक लोगों को मैंने पूछा कि भैया धनपुर में कितना कॉलेज है, तो उन्होंने मुझको बोला कितना का मतलब क्या है सर? मैं बोला भाई कॉलेज कितना है ये बताइए। बोलते कितना क्या, यहाँ में एक भी तो कॉलेज नहीं है। आप देखिए, चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार का कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आज का दिन में एक भी कॉलेज नहीं है। कैसे देश चलेगा? मेरा युवा युवती बच्चा मैट्रिक पास करने के बाद कहाँ पढ़ेगा? कुछ व्यवस्था नहीं है। आज बीजेपी आईपीएफटी का सरकार आएगा तो हर समष्टि में एक कॉलेज बनेगा। रायमा वैली में भी, गंडासेरा में भी नया कॉलेज का निर्माण होगा। आज हमने वादा किया हो, आज हमने त्रिपुरा का सब लोगों को बताया हो, देखो मानिक सरकार जी ने सामाजिक भत्ता दिया। कितना रुपया भत्ता दिया? 500 रुपया, 600 रुपया, 300 रुपया। उनसे क्या काम होता है? आज का दिन में एक बार अगरतला में आप जाइए, बस का भाड़ा ही 100 रुपया निकल जाता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आज बीजेपी सरकार ने, आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगरतला में ऐलान किया है कि बीजेपी आईपीएफटी का सरकार बनेगा तो सामाजिक भत्ता हम 2000 करेगा, हर लोगों को 2000 रुपया का भत्ता मिलेगा। भाई और बहनों, ये परिवर्तन का लहर है, ये परिवर्तन का संग्राम है। अगर इस बार हम सीपीएम को हरवा नहीं सका तो त्रिपुरा का कभी उन्नयन नहीं होगा। आज त्रिपुरा में सीपीएम ने कोई फैक्ट्री नहीं किया, कोई कारखाना नहीं बनाया, कोई मिल नहीं लाया। अगर सीपीएम ने एक ही कारखाना बनाया है, ये गरीब बनाने का कारखाना बनाया है और उन्होंने कुछ नहीं बनाया है। आज हमारा बीच में हमारा माताओं लोग उपस्थित है। रात अगर 2 बजे आप लोग का डिलीवरी पेन होता है, क्या हॉस्पिटल जाने में आप लोग को
मिलता है? क्या डॉक्टर होता है हॉस्पिटल में रात? कुछ भी डॉक्टर नहीं होता है। स्कूल में शिक्षक नहीं होता है, पीने का पानी नहीं मिलता है, सबको शोषण किया जाता है। अगर आप सीपीएम का खिलाफ कुछ बोले तो आपका माताओं बहनों का वो लोग धर्षण करेगा, वो लोग बलात्कार करेगा। ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए, सीपीएम का सरकार हमको नहीं चाहिए। अभी सीपीएम को गोमती नदी में फेंकना है और उनको नया सरकार बीजेपी और आईपीएफटी का नया सरकार का निर्माण करना पड़ेगा। एक नया त्रिपुरा बनाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का आशीर्वाद में हमको एक नया त्रिपुरा का निर्माण करना पड़ेगा। भाई और बहनों, आईपीएफटी और बीजेपी ने हम मिल के सरकार बनाना पड़ेगा। अमरपुर में रंजीत जी का पद्म फूल में वोट होगा, रायमा वैली में टक्कल में वोट होगा, लेकिन अब टक्कल में वोट दो या पद्म फूल में वोट दो, वो वोट जाके नरेंद्र मोदी जी के लिए ही वो वोट होगा। और इसलिए हम सब लोग को नरेंद्र मोदी जी का हाथ शक्तिशाली करने के लिए हमने जैसे अमरपुर में पद्म फूल में रंजीत दास को वोट देना है, ऐसा ही रायमा वैली में भाई धनंजय त्रिपुरा को टक्कल का सीन में वोट देना है। आज सीपीएम प्रचार करता है कि आईपीएफटी आने से वो होगा वो होगा, बीजेपी आने में वो होगा, कुछ नहीं होगा। एक ही होगा, खाली त्रिपुरा में आईपीएफटी और बीजेपी का सरकार होगा, तब त्रिपुरा में एक ही काम होगा, वो काम होगा त्रिपुरा में विकास का गंगा आएगा। त्रिपुरा भारत का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। मैं भाई और बहनों, आप लोग को सबको मैं विनती करता हूं, आज आप लोग का बीच में स्वयं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी आए हैं। हमको जब त्रिपुरा में हमारा सरकार बनाना है, ये सरकार को केंद्रीय सरकार से ताकत मिलेगा। आज हमारा जब सरकार बनेगा, केंद्रीय सरकार से हमको ताकत मिलेगा और केंद्रीय सरकार का साथ कान में कान मिला के हम त्रिपुरा को नया त्रिपुरा निर्माण करने के लिए हम आगे बढ़ेगा। मोदी जी का नेतृत्व में एक त्रिपुरा, सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा का हम लोग मिल के निर्माण करूंगा। भाई बहनों, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि सीपीएम का भी संतरास खत्म करने का समय आ गया है। कोई कोई लोग सीपीएम को डरता है, कभी कभी हम लोग को बोलता है कि सीपीएम हमको वो करेगा वो करेगा। अभी सीपीएम कुछ नहीं कर सकता है। कल थोड़ा दिन पहले 8 तारीख सोनामोरा में मोदी जी का रैली हुआ, आपने देखा कैसे जन सैलाब उतार पड़े। कैलाश शहर में मोदी जी का रैली हुआ, लाखों लोग रैली में आया। कल से अमित शाह जी का रोड शो हुआ, मीटिंग हुआ, हजारों लाखों लोगों ने अमित शाह जी को अभिवादन किया। त्रिपुरा में परिवर्तन लाएगा, ये संकल्प किया त्रिपुरा का जनगण में। आज सीपीएम का हालत क्या है? ये फुटबॉल फील्ड है, आपने देखा है ना। अगर फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल में पाम नहीं होता है, तो फुटबॉल खेल सकता है क्या कोई? बिना पाम फुटबॉल खेल होगा क्या? तो आज सीपीएम का हालत ऐसा है, बिना पाम वाला फुटबॉल है, इसका कोई काम नहीं है। अभी उनका हाथ में कुछ भी नहीं रह सका, मात्र 7 दिन का वो मेहमान है। 7 दिन का बाद सीपीएम और मानिक सरकार दोनों गोमती नदी में उनका विसर्जन होगा। दुर्गा पूजा में जैसा विसर्जन होता है ना, उनका भी विसर्जन होगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, पूरा रेडी हो जाइए, किसी को डरना नहीं है। सीपीएम वाला को गुंडागिरी को डरना नहीं है, वो लोग का गुंडागिरी और बाकी 7 दिन बाकी है, और उसका बाद एक एक करके हम वो लोग का हिसाब लेगा, एक एक गुंडा का हिसाब लेगा और वो लोग को सिखाएगा हम लोग कानून का राज कैसा होता है। आप लोग को मैं पुनर्बार विनती करता हूँ, देखिए हमारा अमरपुर, हमारा रायमा वैली, सब सीट हमको जीतना पड़ेगा।
बीजेपी का जितना हमारा यहाँ भाई है बहन है सब कल को अपना सीन मानते हुए रायमा वैली में धनंजय जी के लिए कूद पड़िए। और ऐसा ही आईपीएफटी का जितना भी समर्थक है सब लोग अमरपुर में रंजीत दास के लिए कूद पड़िए और एक साथ मिलके नया त्रिपुरा बनाने का संकल्प लीजिए। आप लोग ये संकल्प आज हमारा बीच में अमित शाह जी है, उनको बताना है कि रायमा वैली हम जीतेगा। इसलिए ये सभा में जितना लोग हैं उधर में पीछे में आगे में सब लोग अपना हाथ को मुट्ठी कीजिए और अमित भाई जी शाह को बताइए रायमा वैली हम लोग जीतेगा। कैसे बोलूंगा, आप मेरा साथ सब हाथ उठा के जय जयकार कीजिए। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ধন্যবাদ। আজকের এই ঐতিহাসিক জনসভায় 266 পরিবারের 752 ভোটার সিপিআইএম দল থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির জোট সমর্থিত প্রার্থীর সমর্থনে পরিবর্তন যাত্রায় সামিল হয়েছে। 266 পরিবারের 752 ভোটার সবার নাম এখানে ঘোষণা করা যাবে না, তাই আমি টোটালটা বলে দিলাম। এখন আপনাদের সামনে আলোচনা করবেন যারা এতদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন, রাইমা ভ্যালির মানুষ অপেক্ষায় ছিলেন। সর্বভারতীয় সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রপ্রধান দলের সভাপতি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, रायमा वैली वाले ऐसे बोलेंगे क्या? इतनी धीरी आवाज से परिवर्तन नहीं होगा। सीपीएम को उखाड़ना है या नहीं उखाड़ना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। चलो पलटाई। मंच पर उपस्थित आसाम के वित्त मंत्री और नेडा के अध्यक्ष श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, इस कंस्टिट्यूएंसी से आईपीएफटी बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी श्री धनंजय त्रिपुरा जी, अमरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के प्रत्याशी श्री रंजीत दास जी, आईपीएफटी के नेता श्री शुक्ल शरण जी, श्री विकास चकमा जी, आईपीएफटी के नेता श्री विश्राम देव वर्मा जी, भाजपा के नेता श्री उमापत जी, भाजपा के नेता श्री शंकर चक्रवर्ती जी, मंच पर उपस्थित भाजपा और आईपीएफटी के पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको कुछ चीजें पूछना चाहता हूं और उसके भी पहले मैं यहाँ के ही हमारे कार्यकर्ता श्री चंद्रमोहन त्रिपुरा को याद करना चाहता हूं, जिसको सीपीएम ने हत्या कर मार दिया था। चंद्रमोहन त्रिपुरा, उनका दोष इतना ही था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मित्रों, जिस प्रकार से सीपीएम ने यहां हिंसा की राजनीति करी है, वो राजनीति को समाप्त करने के लिए ही
भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी का गठबंधन हुआ है। 25 साल से इस त्रिपुरा की जनता ने माणिक सरकार को वोट दिया है। आप मुझे बताइए, आप सबके घर में शुद्ध पीने का पानी आता है क्या? जरा जोर से बोलिए, आता है? 24 घंटा बिजली आती है? युवाओं को रोजगार मिला है? किसानों को उचित दाम मिलता है क्या? महिलाएं सुरक्षित है क्या? युवाओं को उद्योग कल कारखाने लगाकर नौकरी दी गई है क्या? अब सब में आप नहीं 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 कह रहे हैं, तो 25 साल से एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने कुछ किया है? जरा जोर से बोलिए, कुछ किया है? ऐसा नहीं है भैया, कुछ तो किया है। जरा याद करो, आप किया है या नहीं किया है? मैं बताता हूं क्या किया है। 25 साल में कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीपीएम ने ट्राइबल और आदिवासी भाइयों को गरीब रखने का काम किया है, गरीब रखने का काम किया है। उन पर अत्याचार करने का काम किया है, माता और बहनों पर बलात्कार करने का काम किया है, रोड रास्ते से मुक्त त्रिपुरा बनाया है, कनेक्टिविटी बगैर का त्रिपुरा बनाया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य कहां से कहां पहुंच गए, मगर त्रिपुरा हमारा पिछड़ गया। 25 साल तक आपने सीपीएम को मौका दिया या नहीं दिया, ये बताओ? दिया है ना? मैं आपको कहने आया हूं, 5 साल बीजेपी और आईपीएफटी को मौका दीजिए, हम त्रिपुरा को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे। मित्रों, नंबर 1 राज्य। मोदी जी के नेतृत्व में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो सब जगह पे 24 घंटा बिजली पहुंची है, एम्बुलेंस की सुविधाएं पहुंची है, गांव में अस्पताल पहुंचा है, गांव में स्कूल बने हैं, युवाओं को रोजगारी मिली है, उद्योग लगा है। ये सब त्रिपुरा में नहीं हुआ है। और मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि त्रिपुरा के राजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य के नाम से एयरपोर्ट करने की भी हमने मांग की थी, मगर त्रिपुरा सरकार ने वो भी नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी की सरकार बनती है, तो उसकी पहली कैबिनेट में प्रस्ताव किया जाएगा, अगरतला एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य के नाम से रखा जाएगा। जैसे ही आईपीएफटी और बीजेपी की सरकार बनती है, पहली कैबिनेट में निर्णय किया जाएगा कि 7वें वेतन आयोग को सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया जाएगा। ये सारे युवा जितने भी हैं, आप लोग नौकरी के इंटरव्यू में जाते हुए लाल कार्ड मांगते हैं ना, आपसे कार्ड मांगते हैं या नहीं मांगते हैं? मगर चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वर्ग 3 और 4 के इंटरव्यू ही समाप्त कर दिए जाएंगे। जिसका ज्यादा मार्क होगा उसको घर पर बैठकर नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सारे युवाओं को एक स्मार्टफोन त्रिपुरा सरकार की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, हर घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी, हर परिवार में एक नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अभी अभी बजट आया, बजट में तय किया है कि हर
ब्लॉक के अंदर एकलव्य निवासी, एकलव्य रेसिडेंस स्कूल ट्राइबल के लिए, जनजातियों के लिए बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। हर ट्राइबल परिवार के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख तक की दवाइयां और हॉस्पिटलाइजेशन मुफ्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। हर गरीब ट्राइबल को रहने के लिए घर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा के लिए बहुत सारे काम किए हैं, मगर माणिक सरकार की जो सरकार है वो नीचे तक काम को पहुंचाती नहीं है। त्रिपुरा को पहले भारत सरकार से 7,000 करोड़ रुपया मिलता था और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद त्रिपुरा को 7,000 करोड़ मिलता था, उसको बढ़ाकर, उसको इंक्रीज कर 25,000 करोड़ भेजने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मगर ये 25,000 करोड़ रुपया आपके गांव में पहुंच रहा है क्या? आता है भाई? आता है? तो कहां गया ये पैसा? जरा बोलिए, कहां गया? सारा पैसा सीपीएम की केडर को भेंट चढ़ गया है। मित्रों, अगर यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 25,000 करोड़ रुपया से त्रिपुरा के एक एक गांव का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, मैं भरोसा देना चाहता हूं पूरे त्रिपुरा के ट्राइबल भाई बहनों को कि भारतीय जनता पार्टी का अगर पूर्ण बहुमत आता है, 30 की 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो भी आईपीएफटी को हम सरकार में हिस्सेदार भी बनाएंगे और आईपीएफटी के मंत्रियों को भी काम देंगे। मित्रों, कम्युनिस्ट पार्टी डराती है, हिंसा करती है। मैं आईपीएफटी और भाजपा के कार्यकर्ता को कहता हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस बार त्रिपुरा की जनता हमारे साथ हुए। जहां जनता हमारे साथ होती है, गुंडों की हिम्मत नहीं होती है जनता को परेशान करने की। मित्रों, मैं पूरे त्रिपुरा में घुमा हूं, मुझे भरोसा है 3 तारीख को जब मतगणना होगी, 3 मार्च को, यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आप मुझे बताइए, आप लोग आईपीएफटी और कमल के निशान पर वोट करेंगे? जरा जोर से बोलिए, टक्कल और कमल पर वोट करेंगे? जरा जोर से बोलिए, करेंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताएंगे? भाजपा आईपीएफटी की सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। धन्यवाद। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আজকের এই জনসভার সভাপতি তথা ৪৪ রায়মাবিলি মন্ডল কমিটির সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিকাশ চাকমা, সাথে সাথে আজকের এই সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ।
আজকে আমাদের এই ঐতিহাসিক বিজয় সংকল্প দিবসের জনসমাবেশে উপস্থিত রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় অমিত শাহজি, এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আসামের অর্থমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, এখানে মঞ্চে উপবিষ্ট অমরপুর এবং রাইমা বেলের দুইজন আমাদের মনোনীত প্রার্থী এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আইপিএফটি এবং বিজেপির নেতৃত্বদল, এবং আজকে আমাদের এই সমাবেশে সমবেত সংগ্রামী মায়েরা বোনেরা, আমার সংগ্রামী অভিনন্দন।